اور G20 ماڈل سمٹ سری نگر میں منعقد کیا گیا. سیکرٹری محکمہ سیاحت جموں کشمیر ڈاکٹر سید عابد رشید کا کہنا ہے کہ کشمیر میں G20 ورکنگ گروپ کا اجلاس جموں کشمیر کے لیے قابل فخر لمحہ ہے اور اس سے جموں کشمیر کو ایک عالمی سیاحتی مقام کے طور پر فروغ ملے گا. شرکاء نے G20 کے رکن ممالک کے سیاحتی صنعتوں سے متعلق مختلف امور پر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تقریب G20 کے پروگراموں میں عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کی شرکت اور ہندوستان کی صدارت کا جشن منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی. ٹورزم ورکنگ گروپ کی بیٹھک ہے, اسی لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. ڈفرینٹ ڈیلیگیٹس G20 کنٹریز سے آئیں گے ہمارے بیچ, یہاں کچھ دن سپینڈ کریں گے اور ٹورزم کے بارے میں خاص طور پہ ایڈونچر ٹورزم, ایکو ٹورزم, فلم ٹورزم, ان سب چیزوں پہ بات ہوگی. ان سب چیزوں سے ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو گلوبل سٹینڈرڈ کا ٹورزم ڈیسٹینیشن پروموٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بہت فائدہ مند چیز ہوگی اور ان ڈیلیبریشن سے, ان ڈسکشن سے جو نتیجے عکس ہوں گے, آئی تھنک دیٹ ول بی ویری بینیفیشل اینڈ فروٹفل ٹو آل آف اس. دیکھیے ایسا ہے, فارن ٹورسٹ اور انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورسٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. فارن ٹورسٹ کا ارائیول آپ جانتے ہیں J&K واز اے میجر ڈیسٹینیشن for foreign tourist arrival. So therefore we are now trying to scale it up. We are making sure whatever needs to be done to make the arrivals more facilitatory, make the arrival of foreign tourists more enabling, and that enabling atmosphere has to be created. As you are fully aware, there are certain issues in that. We are all trying, like I said, this G20 summit in Kashmir will probably go a long way in reassuring everybody that Jammu and Kashmir is one of the topmost tourist destinations in the world. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمٹ ہو رہا ہے یہ بدلاؤ بہت سال کے بعد ایک کنٹری کو ملتا ہے. فار ایگزامپل یہ G20 ہے, ہر کنٹری کو یہ 20 سال بعد ایک بار ملتا ہے. اور اگر ہم اگلے سمٹ کی بات کریں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈیا میں اگلا سمٹ کب ہوگا, تو پھر وی کین سیفلی ایزیوم دیٹ دس G20 از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو G30. اینڈ اگر ہم اگلے سمٹ کی بات کریں تو پھر وہ 30 سال بعد انڈیا کو پھر سے ملے گا. دین آئی تھنک اٹ از ونس ان لائف ٹائم مومنٹ فار می ٹو پریزنٹ ہیئر اینڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان G20 سمٹ. سو اٹس اے ویری پرائڈ مومنٹ فار اس, فار پرٹیکولرلی فار کشمیر, کیونکہ یہاں پہ پہلی بار بھی کشمیر میں ٹورزم کو یہ چیز ملی ہے. کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے ایڈوائزری, پہلے تو فارن ٹورزم کشمیر میں بہت زیادہ تھا, لیکن بیچ میں ایسا کچھ ہو گیا کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ یہاں پہ فارن سے لوگ آئے. لیکن دس ٹائم جو G20 سمٹ یہاں پہ ہو رہا ہے, اٹس ویری پرائڈ مومنٹ فار کشمیریز, بیکاز یہاں پہ ابھی فارن سے ڈیلیگیٹس آئیں گے, جس کی وجہ سے اٹس اے ویری بگ تھنگ فار کشمیر ٹورزم پرٹیکولرلی. ہمارا ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان فیوچر دیر از لائک 50% ہمارا آلریڈی کاربن ایمیشنز ہائی ہو چکے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے سسٹینیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز لائف. اس سے یوتھ کے لیے بہت فائدہ ہے کہ ہم بہت چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہیلپ ہوگا آگے جا کے یوتھ جتنے بھی آئیں گے ان سب کے لیے. کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے. سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر سید عابد رشید کا کہنا ہے کہ یہاں فلموں کا عملہ شوٹنگ کر رہا ہے اور کئی بڑے بینرز کی فلم کی شوٹنگ کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں. انہوں نے کلچرل ٹورزم کے ساتھ نیو ڈیسٹینیشن اور ایکو ٹورزم کے فروغ کے بارے میں بات کی. آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر پہلے سے ان the 60s in the 70s J&K was the prize destination for film tourism, destination جہاں پہ شوٹنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں ٹورزم فلم کی. اسی طرح سے now I am happy to report to you and tell all of you that in the last 1 year 200+ movies have been shot in J&K. Abhi we have big film stars who are coming in today also. We have a film crew, major film crew and a very big superstar in the town. آگے آنے والے وقت میں queries ہیں. اس کا probably reason یہ ہے that in terms of this film tourism ہم نے ایک single window clearance in the true sense of it. Online, there is an online portal, you can go back to that, you can identify all the kind of locations that you need, you can apply and all the permissions will be facilitated. So there is a very strong facilitatory ecosystem with regard to film tourism, and ہمارے لیے as a destination J&K کے لیے, جموں کشمیر, وادی کشمیر کے لیے اور خاص طور پہ ان ڈیسٹینیشنز کے لیے جو ادھر ٹو انٹچڈ ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ آل دیز نیو ڈیسٹینیشنز. اگین آئی ول بی ہیپی ٹو رپورٹ ٹو یو دیٹ اس سال, اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 300 نئے ڈیسٹینیشنز پلان کیے ہوئے ہیں. سم آف دیم آر آلریڈی اپ اینڈ اباؤٹ.
इसमें 75 off-peak destinations are. You know that there is a carrying capacity of every destination. और पट्टन के हबक टेंगू और दूसरे इलाकों में नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने से पानी रिहायशी मकानात के सहनों में दाखिल हो गया है। हबक टेंगू में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सहन में भी पानी दाखिल हो गया। स्कूल की इमारत काफी खस्ता है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को घर वापस रवाना किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है, लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हबक टेंगू में लोग पानी की निकासी का बेहतर निजाम बनाने और स्कूल की इमारत की तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। मिडिल स्कूल की जो ये बिल्डिंग है 1990 से पहले बनी हुई है, ये खस्ता हो चुकी है, अनसेफ भी करार दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जेई ने। और बच्चे इसमें 200 प्लस है इनरोल, बट जब मामूली बारिश होती है तो उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है, छुट्टी करनी पड़ती। हाँ, हमारी यही डिमांड है आपकी चैनल के वसादत से, आला हुकाम से, यही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इस गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल के लिए एक अच्छी खासी बिल्डिंग तामीर की जाए। जैसा कि सूरत हाल आपकी आंखों के सामने है, पानी घुस चुका है, ऑलमोस्ट क्लासेस के अंदर घुस चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8वीं तक ये स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और लगभग 5 क्लासों को छुट्टी कर दी गई है। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। मामूली बारिश पड़ने पर भी यहाँ पे आप प्लंथ लेवल देख सकते हैं, लगभग वो गायब हो चुकी है। और मामूली सी बारिश पड़ती है तो वो क्लास में दाखिल होती है, और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता कई दिनों से लगातार मौसम खराब रहने और लगातार बारिशों का सिलसिला, जो न थमने वाला सिलसिला जो जारी रहा है, उससे जो नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव जो है वो बढ़ने लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाले फेरुजपुरा में हम हबक टेंगू के मुकाम पर है, और आप देख सकते हैं कि ये नाले फेरुजपुरा, इसमें पानी जो है काफ़ी बढ़ने लगा है और लगातार बारिशें जो हुई है। और यहाँ तक कि यहाँ हबक टेंगू में जो यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी था, उस मिडिल स्कूल के अंदर भी पानी घुसा है और उसमें बच्चे जो है उनको छुट्टी करनी पड़ी, और वहाँ पे इन्हें स्कूल के अहाते में जो पानी दाखिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे रिहायशी मकानात जो हैं, उनके कई मकानात जो ऐसे हैं जिनके सहन में पानी दाखिल हो गया है। स्कूल में जो पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है, और इस तरह ये इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि इन स्कूलों के अंदर और मुकामी रिहायशी लोगों के जहाँ जहाँ पानी दाखिल हो गया वहाँ पर निकासी की ज़रूरत है, ताकि ये लोग बच सकें। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं हबक टेंगू से मुनीर हुसैन, हुर्रा। और वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से कई करीपुरा के रिहायशियों के खदशात दूर करने में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक 2 नाले हमजा कॉलोनी, खोसाबाग, कानीपुरा से गुजरते हैं। ज़ेर ज़मीन पाइप के जरिए ये दोनों नाले नौगाम पुलवामा सड़क के पार तीसरे मेन नाले से जुड़ जाते हैं, लेकिन पाइप मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और हल्की बारिश से भी पूरा इलाका ज़ेर आब आ जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ इंजीनियर को NHAI चंडीगढ़ से मंजूरी के बाद एक पुल बनाने की जरूरत से आगाह किया गया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारे जो ये पानी है घरों में घुस गया है, क्योंकि ये जो पानी है जो नाले में जो नॉर्मल नाला होता है उसी में पानी आ गया हमारे घर, क्योंकि आगे से जो रास्ता निकल रहा था वो प्रोजेक्ट ऑफ ड्रेनेज का सिस्टम था, क्योंकि वो पास आउट नहीं हुआ लास्ट 10 ईयर से लगभग। तो हमने हुकाम से भी अपील की थी, जब हम वहाँ गए, हैदरपुरा गए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन फर्स्ट हमने गए, तो वहाँ उन्होंने बोला ये प्रोसेस हो जाए, ये हम क्योंकि इनका डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से रिलेटेड है, उन्होंने बोला हम वो सॉर्ट आउट कर देंगे। अब मगर हमारी जो इस वक्त जो पानी जब भी बारिश आती है, जो वेदर ड्राई होता है, उस वक्त पानी घुस जाता है घर में, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम ही सफ़र कर रहे हैं। अब आपने अभी विजुअल्स देखे हैं, आपने यहाँ खुद ही मुआयना किया है सरोज जी, कि आपने देखा कि इधर से गार्बेज जमा हुआ है। तो हम हमारी हुकाम से यही अपील की, ये जो ड्रेन है, ये जो कलवट है, या इसमें कलवट डाला जाए, या जो आयरन के वो नायर्स होते हैं या उनमें लागू किए जाए, क्योंकि इससे हमारा मसला हल हो। पिछले कुछ सालों से एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एक नाला फ्लो करता है कॉलोनी के बीच में से, तो उस नाले को मेन नाले के साथ कनेक्शन है थ्रू अंडरग्राउंड पाइप ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये पानी सारा हमारी लोकेलिटी में मकानों में घुस रहा है, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि ये पानी का कोई निकास नहीं है। हमने कई बार आला हुकाम से इस बारे में बात की है, पिछले 3 सालों से हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं आला हुकाम के साथ, मगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक कोई नहीं आया है। आपकी वसातत से हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर ले लें, ताकि हमें ये परेशानी जो है दूर हो जाए।